Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. Basic concept of chemistry में mechanism of organic reactions इस पे डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो पिछले दो वीडियोस में हमने डिफरेंट रिएक्शन में जो स्पेसीज बनती है, अटैकिंग रिएजेंट और उसके अलावा जो कार्बनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड ब्रेकेज होता है, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, इन सब बातों पे डिस्कशन किया था। आज के क्लास का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आज के क्लास में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, तो शायद टू टाइप्स आर डिस्कस्ड हियर एंड रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज के क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक reactions. You know that in organic compounds molecular reactions takes place, not ionic, लेकिन कुछ प्रोसेस इस तरह से होते हैं कि वो हमें आयनिक रिएक्शन के तरह भी लगता है। जहाँ फर्स्ट रिएक्शन होगा वहाँ आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व होती है, जैसे पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कार्बन पे जब प्लस चार्ज होता है तो वो कार्बोनियम आयन कहलाते हैं, और ऑर्गेनिक आयन के कार्बन पे जब माइनस चार्ज होता है तो वो कार्बन आयन कहलाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता है जब एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये पिछले क्लास में जाना, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सारी चीजें। तो आज के क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। The reactions of organic compounds can be classified into 4 main types. First, substitution or displacement reactions. Second, addition reactions. Third, elimination reactions. And fourth, rearrangement reaction. These are the 4 special type of reaction which occurs in organic compounds. Some other types of reactions are isomerization, condensation reactions, polymerization reactions, and pericyclic reaction. These are also important reactions of organic compounds. First, we take substitution or displacement reaction. Substitution or displacement reactions are those reactions in which an atom or group of atom attached to a carbon atom in a substrate molecule is replaced by another new atom or group of atoms, that is substituents. During the reaction, no change occur in the carbon skeleton, no change in saturation or unsaturation of the initial organic compound. Depending on the mechanism, the substitution reactions are further classified into 3 types. First, free radical substitution reaction. Second, electrophilic substitution reaction. And third, nucleophilic substitution reaction. Some of the examples of substitution reactions are, this is the free radical substitution reaction. In the presence of ultraviolet, chlorine forms free radicals which attach with the methane by replacing one hydrogen atom and forms CH3Cl plus HCl. यहाँ एक क्लोरीन जो कि फ्री रेडिकल बनाता है CH4 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, यानी यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बच जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, वो HCl से अटैच हो जाएगा और CH3Cl बनेगा. Here hydrogen atom is replaced by chlorine. The second type of reaction, this is nucleophile बनता है यहाँ OH,
जो कि Br को ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से methyl alcohol when reacts with HBr, HBr replace OH and forms methyl bromide. This is the substitution reaction. Benzene reacts with nitric acid. Now NO2 replace one hydrogen in the presence of concentrated sulfuric acid and form nitrobenzene and water. Here water is replaced by NO2 group. In this reaction, propylene reacts with chlorine and CH. Here from this carbon H replaced by Cl and form allyl chloride. तो स्केलेटन ऑफ द कार्बन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जहां डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड है, कार्बन अपनी जगह पे है, सिर्फ कोई जो एटम या ग्रुप अटैच है वो दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं. Here hydrogen is replaced by chlorine. Another example, benzene reacts with Cl2 in presence of FeCl3, H replaced by Cl and form chlorobenzene. Now second type of reaction is addition reactions. Addition reactions are those in which the attacking reagent add up to the substrate molecule without elimination to give a single molecule of the product. Such reactions are given by those compounds which possess double or triple bond or pi bonded. In the process, a triple bond may be converted into double bond or single bonds, and a double bond is converted into single bonds. For each pi bond of the molecule, 2 sigma bonds are formed, and for each pi bond of the molecule, 2 sigma bonds are formed, and the hybridization state of carbon atoms change from sp to sp2 and sp2 to sp3. Like substitution reactions, addition reactions are of three types: free radical addition reactions, nucleophilic addition reactions, and electrophilic addition reactions. Now some of the examples of addition reactions: acetylene when reacts with hydrogen, this is addition reaction, both H2 molecules added with here and the triple bond is changed into double bond and form ethylene. अब इसको भी आगे रिएक्शन कराते हैं, ये 413 पे, अब 473 केल्विन तक गर्म करते हैं तो और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता है एंड इथेन इज फॉर्म. दिस इज द एडिशन रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन कर जो रिएजेंट है वो पूरा का पूरा ऐड हो जाता है सबस्ट्रैक्ट में. For example, other example, ethylene when reacts with Br2, it attach with Br. Br यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और दोनों Br कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, CH2Br CH2Br. एसेटल्डिहाइड यहाँ CH3CHO यहाँ डबल बॉन्ड है, HCN से रिएक्शन होता है तो यहाँ OH और CN दोनों यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और ये साइनोहाइड्रिन बनता है. दिस इज द एडिशन रिएक्शन. मेथिल साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ H2O से रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, देन CH3C से यहाँ O अटैच हो जाता है और N के साथ यहाँ पे H2 अटैच हो जाता है. दिस इज द एसिटामाइड. अदर एग्जाम्पल, एसिटिलीन रिएक्ट्स विद HBr, तो ये H एक कार्बन के साथ और Br दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है, एक पाई बॉन्ड यहाँ टूट करके सिंगल बॉन्ड बनाता है. उसी तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और ये सिंगल बॉन्ड से कार्बन नाइट्रोजन जुड़ जाते हैं और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन. उसके बाद ये तुम्हारा विनाइल ब्रोमाइड बना, आगे फिर और आगे रिएक्शन बढ़ता है तब दूसरा HBr मॉलिक्यूल इस तरह से ऐड हो जाता है, इस बॉन्ड का भी पाई बॉन्ड टूट करके CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr2, दिस इज एथिलीन ब्रोमाइड बनता है. These are the addition reactions. On the basis of mechanism,
addition reactions are of following three types. First, free radical addition reactions, electrophilic addition reactions, and nucleophilic addition reactions. So first we discuss on free radical addition reactions. Free radical कैसे फॉर्म होते हैं, पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हो. In these reactions, addition of free radicals take place at double or triple bond. डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब मॉलिक्यूल में होगा तभी एडिशन रिएक्शन होता है, और फ्री रेडिकल के लिए भी यही फॉलो होता है. फॉर एग्जांपल, एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, तो दोनों Cl जुड़ जाते हैं कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड जब डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह बना रहता है. The addition reactions taking place at C double bond C bond in gaseous state in presence of ultraviolet light or in an inert solvent or in presence of peroxide also occur by free radical mechanism. Now, mechanism of the reaction: in gaseous state and in presence of a non-polar solvent or sunlight, addition of halogen का हम की मैकेनिज्म देखेंगे. फॉर एग्जांपल, Cl2 at C double bond C bond. The addition of halogen at C double bond C bond takes place via free radical mechanism. Here ethylene reacts with chlorine, it forms 1,2-dichloroethane in presence of H-. The following steps are involved in the reaction. First is chain initiation. चेन इनिशिएशन में क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट ब्रेक्स इनटू टू फ्री रेडिकल्स, यानी Cl के बीच जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों क्लोरीन लेकर के अलग हो जाते हैं. दीज आर फ्री रेडिकल्स एंड दिस स्टेप इज नोन एज चेन इनिशिएशन. अब जब ये Cl बना, वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ एक फ्री रेडिकल इसमें जुड़ता है. अभी चेन प्रोपेगेशन, दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपेगेशन. Cl इसके साथ जुड़ करके सिंगल बॉन्ड रह जाता है यहाँ, और ये Cl CH2 ये फ्री रेडिकल दूसरा बनाता है. अब ये फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से यहाँ पे दो बने थे वहां, उससे जुड़ करके अगला फिर ये फ्री रेडिकल बनाता है. फिर उसके बाद और दूसरे क्लोरीन जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो करके इस तरह से ये जुड़ते जाते हैं. दो क्लोरीन एटम जुड़े, उसके बाद तीसरा जुड़ेगा, और इस तरह से चेन प्रोपेगेशन होता है. यहाँ लगा करके N लिख देते हैं, यानी ऐसी ये चेन आगे बढ़ती जाएगी. चेन प्रोपेगेशन चल रहा है, एक Cl यहाँ जुड़ा, फिर एक Cl और जुड़ेगा. दिस इज दी चेन. अगर जैसे और आगे रिएक्शन बढ़ते जाना है, अगले मॉलिक्यूल में जो अगले Cl2 मॉलिक्यूल थे वो अगले CH2Cl से मिलकर के इस तरह का की स्पीशीज बनाएंगे, फिर उससे Cl जुड़ करके फिर इस तरह से ये चेन आगे बढ़ती जाएगी. और ज्यादा जैसे कार्बन एटम्स होंगे तो उनसे क्लोरीन जुड़ता जाएगा. दिस इज नोन एज चेन प्रोपेगेशन. और लास्ट स्टेप होती है कि पूरी तरह से जो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल से दो फ्री रेडिकल बने थे वो दोनों इसमें ऐड हो गए. जब कार्बन एटम दो ही है तो दो ही ऐड होंगे, और अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा क्लोरीन एटम ऐड होते चले जाएंगे, तब वो होगा चेन प्रोपेगेशन, यानी चेन बढ़ती जाएगी. कम कार्बन एटम है तो यहाँ जो रिएक्शन स्टॉप होगा, दोनों फ्री रेडिकल ऐड हो गए कार्बन के साथ. दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस स्टेप इज चेन टर्मिनेशन. तो 3 स्टेप्स होते हैं. पहला चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपेगेशन, और चेन प्रोपेगेशन के बाद चेन टर्मिनेशन. Second type of reaction is electrophilic addition reactions. Those reactions which involve addition of an electrophile on double or triple bond in the rate determining steps are known as electrophilic addition reactions. Addition reactions of C double bond C and C triple bond C are usually
E plus addition, that is electrophile. Reactions at pi electron cloud of C double bond C and C triple bond C attract E plus. यहाँ पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं E प्लस, यानी जिसके इलेक्ट्रोफाइल जिसपे की पॉजिटिव चार्ज होता है. फर्स्ट एक कार्बोकैटायन इज फॉर्म by the addition of electrophile E plus and then addition of nucleophile gives final product. तो पहले स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल ऑन C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म. मैकेनिज्म किस तरह से, सब्सट्रैक्ट है जिसमें C डबल बॉन्ड C है, HX, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट्स. यहाँ X जो निगेटिव पार्ट है वो अलग हो जाता है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ करके इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाता है. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन पे प्लस चार्ज आता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन इससे अटैच हो रहा है. फिर प्लस होता है, यानी जो X माइनस यहाँ पे रिमूव हो गया था फिर वो आगे ऐड हो जाता है, यानी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. जो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल है जो इसमें ऐड हो जाता है. तो फाइनली क्या बनता है, प्रोडक्ट. तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है CC डबल बॉन्ड से तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है. फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ करके फाइनली प्रोडक्ट बनाता है. These reaction involve following steps. पूरा स्टेप रिएक्शन में भी मैकेनिज्म देखा, अब इनकी स्टेप देख सकते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग. जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे है, जहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा जिससे यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. तो NU ये दोनों ब्रेक होते हैं. जो अटैकिंग रिएजेंट होगा उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होगा. पहले वाली बात सही नहीं, जो न्यूक्लियो अटैकिंग रिएजेंट उसमें एक होगा एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल. दोनों ब्रेक करेंगे फर्स्ट स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल अलग हो गया और न्यूक्लियोफाइल अलग हो गया. सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन. E प्लस इसमें ऐड हुआ, स्लो प्रोसेस होगा ये. दिस इज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. दिस इज द सेकेंड स्टेप. Now pi electrons of C double bond C bond attract E plus, attend it first while repel Nu minus. Addition of E plus on double bond takes place on priority due to this reason. Now third step, formation of product by addition of nucleophile. अब जो कार्बोकैटायन बना था यहाँ प्लस चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज है. अब ये प्रोसेस फास्ट होता है क्योंकि यहाँ माइनस प्लस हो गया ना. प्रोडक्ट कार्बन के साथ E और इस कार्बन के साथ इधर इलेक्ट्रोफाइल इधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है. दिस इज द प्रोडक्ट. For example, reaction between C double bond C and Br2 यानी bromine water. When CH2 and Br2 reacts, it forms 1,2-dibromoethane. This reaction occurs via formation of cyclic bromonium ion. तो इसमें फ्री इलेक्ट्रोफिलिक डिकम्पोजिशन होता है ब्रोमीन का. तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाते हैं और एक तरफ ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं. तो ये Br माइनस और Br प्लस दो तरह के जो आयन बनते हैं. Br प्लस क्या है, ब्रोमोनियम आयन, और Br माइनस होता है ब्रोमाइड आयन. दिस इज दी ब्रोमाइड आयन. और Br प्लस बनेगा दूसरा जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चलेगा. दिस इज दी ब्रोमोनियम आयन. तो Br प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल. अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 से पहले जो न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस, ये रिएक्ट करता है और इस तरह से साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इस तरह से बनता है. ये रिएक्ट नहीं कर रहा है बल्कि ये माइनस Br माइनस यहाँ से
जब ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ बी आर के बीच CH2 से, तो इसमें से -Br यानी ब्रोमाइड आयन निकल गया, Br प्लस यहाँ जुड़ करके साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाता है, और ये ब्रोमाइड आयन बाद में ये जुड़ करके कंपाउंड इस तरह से प्रोडक्ट बनाता है। तो पहले ब्रेकअप होता है Br2 का Br प्लस और Br माइनस में, फिर ये Br माइनस अलग हो जाता है और Br प्लस के साथ क्लास साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना, फिर ब्रोमाइड आयन भी ऐड हो गया, तो एक के साथ ये, इसके साथ Br प्लस, इसके साथ Br माइनस, दोनों जुड़ करके फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं। In the mechanism of above mentioned reaction, it would be incorrect to assume the formation of free bromonium ion B+. पहले हम लोग बता रहे थे कि फ्री ब्रोमोनियम आयन बनता है, मगर ये कंसेप्ट गलत है, बल्कि ब्रोमोनियम आयन इस तरह से बनता है B+ आयन, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड में होता है, जिससे अट्रैक्ट होकर दोनों से अटैच होकर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाता है। This is because Br2 molecule is a homodiatomic molecule, hence its heterolytic fission is not possible to give bromide and bromonium ions. In fact, when bromonium ion plus molecules comes into contact with pi electron of carbon-carbon double bond pair is repelled so as to make Br2 molecule polarized. As a result, heterolytic fission occurs to give bromonium ion. Heterolytic fission जब होता है तब ये ब्रोमोनियम आयन बनता है, लेकिन ये ओल्ड कंसेप्ट है, दिस इज द इनकरेक्ट। जो अभी ऊपर रिएक्शन में बताया कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन किस तरह से बनता है, वो करेक्ट स्टेप है। Now second example, addition of HX on C double bond C bond, CH2 double bond CH2 HS, तो प्रोडक्ट इस तरह से बनता है, एक तरफ H जुड़ गया, एक तरफ X। Its mechanism involves following step. Step first, formation of electrophile. Heterolytic fission of HX molecules takes place and forms electrophile and nucleophile. Second step, formation of intermediate carbocation by addition of electrophile. This is H+. Since electrophile H+ is attracted by electrons of pi bond, addition of H+ takes place first. तो H+ यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, जिससे H+ अट्रैक्ट होता है और इससे अटैच हो जाता है CH2, ये स्लो स्टेप है। दिस इज दी कार्बोकैटायन बनता है, दिस इज दी पहले इस तरह की स्पेसीज बनती है, फिर यहाँ H+ और जुड़ता है, लेकिन ये दोनों ही स्टेप्स स्लो होते हैं और फाइनली H+ यहाँ इससे ऐड हो जाता है और इस पे प्लस चार्ज रह जाता है। नाउ दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। And third step, formation of product by addition of nucleophile. Now X- is nucleophile. Now carbocation reacts with nucleophile. This is fast process and forms product. CH इधर जुड़ गया, X इधर, this is the product. Now addition of unsymmetrical molecule on unsymmetric unsaturated bond. When addition of an unsaturated unsymmetric molecule on unsymmetric unsaturated bond. When addition of an unsaturated mean double or triple bond molecules takes place on an unsaturated bond, two products are formed. Like this X से reaction जब होगा, R यहाँ पे in अनसिमेट्रिक मीन्स जब दो इक्वल पार्ट में जिसको ना किया जा सके वो अनसिमेट्रिक HX से रिएक्शन होता है। तो X जो है ये C से यहाँ जुड़ गया और जो H है वो इस कार्बन से, तो ये बनना चाहिए ये प्रोडक्ट। दिस इज दी, इस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए और दूसरे रिएक्शन में इस तरह से बनना चाहिए। तो सेकंड जो है ये गलत है, इनकरेक्ट। यानी
इसमें कहाँ H कहाँ जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, और XCH2 से, दिस इज इनकरेक्ट। X कहाँ जाएगा, इस वाले CH से, और H जाएगा इस CH2 से साथ, दिस इज दी करेक्ट। द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोडक्ट इन सच केस इज एक्सप्लेन्ड बाय मार्कोनी-कॉफ्स रूल। अब मार्कोनी-कॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ्स रूल से जो प्रोडक्ट फर्स्ट रिएक्शन में बन रहा है वो करेक्ट है। व्हाट इज द मार्कोनी-कॉफ्स रूल? According to the rule, when an unsymmetric molecule adds to an unsymmetrical unsaturated by electrophilic addition mechanism, the positive part of the molecule add to the carbon atom which is linked to a higher number of hydrogen atom. तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगा वो ऐड कहाँ होगा, उस कार्बन एटम से जो कि हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसके पास प्रेजेंट होंगे। हेंस प्रोडक्ट फर्स्ट इज फॉर्म बट सेकंड इज नॉट फॉर्म इन अबव रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन एटम किससे ऐड हो रहा है, जिसके पास भी हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, 2 है, और X ऐड होगा जिसके पास की, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम कम है। दिस इज द मार्कोनी-कॉफ्स rule, and this product is formed according to Marconi-Cox rule and known as Marconi-Cox product. And this is incorrect. यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उस एटम के पास, कार्बन एटम के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ ये इनकरेक्ट है। दिस इज एंटी मार्कोनी-कॉफ्स प्रोडक्ट। The product formed in above case can be explained by Marconi-Cox rule. Marconi-Cox rule can be illustrated on the basis of stability of intermediate carbocation. In addition of HX on R CH double bond CH2, 2 intermediate carbocations are formed. CH2 plus H plus जब ऐड होगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है इस तरह से, एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 तरह के स्पीशीज बनती हैं। दिस इज द अनस्टेबल एंड दिस इज द स्टेबल। द 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल X minus occurs at it and Marconi-Cox product is formed. X माइनस कहाँ जुड़ेगा करके, 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है तो इससे जुड़ेगा और हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। देन Marconi-Cox product is obtained. Now Kharash effect or peroxide effect. In presence of oxygen or peroxide, addition of HBr on an unsymmetrical double bond takes place against Marconi-Cox rule. The effect produced in presence of peroxide is known as peroxide or Kharash effect. For example, addition of HBr on propene in presence of peroxide takes place like this. CH3, CH double bond CH2, HBr. यहाँ H को कहाँ जाना चाहिए, मार्कोनी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स जब पेरोक्साइड के से की प्रेजेंस में दोनों का रिएक्शन होगा तो H ऐड होगा CH2 के साथ और Br ऐड होगा CH के साथ। This is two bromopropane according to Marconi-Cox rule, and this is Marconi-Cox product. This is correct accordance with the peroxide effect. Here hydrogen is attached with this carbon which have less carbon hydrogen, and bromide is attached here. So in presence of peroxide ये reaction होगा, जब peroxide नहीं होगी तो according to Marconi-Cox reaction होगा. This is the peroxide effect. Now explanation of peroxide effect. In presence of peroxide, addition of HBr on an unsymmetric double bond occurs by free radical mechanism, not by electrophilic mechanism. Free radical mechanism of the addition of HBr involves following step. First, chain initiation. So C6H5 C double bond O
ये पूरा क्या है, डाई बेंजोइल पेरोक्साइड। ये फ्री रेडिकल यानी इसका ब्रेकअप होता है, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दो पार्ट में बट जाता है। दिस इज दी फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। नाउ दिस रिएक्ट्स विद HBr इन फर्स्ट स्टेप एंड फॉर्म C6H5COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। एंड Br फ्री रेडिकल यहाँ पे अलग हुआ, यहाँ पे H+ अलग हुआ इसका, और यहाँ Br। तो दिस इज दी चेन इनिशिएशन स्टेप। तो पहले ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल बनता है, उसके बाद ये Br फ्री रेडिकल बनता है HBr के ब्रेकअप से। उसके बाद चेन प्रोपेगेशन। अब इससे Br फ्री रेडिकल का रिएक्शन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH से, एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा ये 2 डिग्री CH3CH CH2Br बनेगा, क्योंकि Br यहाँ ऐड हो रहा है। उसके बाद और दूसरा 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा जो कि लेस स्टेबल है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, इसके पास। Hence chain propagates through secondary free radicals। अब ये फ्री रेडिकल है, फिर HBr से फिर रिएक्शन होगा, तो फिर एक ब्रोमाइड फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा, और ये आगे फिर उसी तरह से ये स्टेप होगी, और स्टेबल एंड अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे। नाउ इन थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन। नाउ Br फ्री रेडिकल जो बन रहे हैं ये आपस में मिल करके ब्रोमाइड बना लेंगे, और फाइनल जब ये प्रोडक्ट हमें फाइनल मिलेगा इस तरीके से। Br अलग हो जाएगा, जो Br यहाँ भी बना था और Br जो है पहले स्टेप में बना था, वो दोनों अलग हो जुड़ जाते हैं, और ये फाइनली प्रोडक्ट हमें यहाँ पे चेन टर्मिनेशन प्रोसेस में मिल जाता है। ये हुआ CH3CH2CH2Br, दिस इज द प्रोडक्ट, एंड Br यहाँ मिला, उससे पहले Br फ्री रेडिकल पहले के रिएक्शन में था, और दोनों मिल करके चेन टर्मिनेशन में आपस में ब्रोमीन बना लेते हैं। फिर ये आगे चेन इस ब्रोमीन बन जाते हैं, जबकि रिएक्शन यहाँ HBr से हो रहा है, तो ब्रोमीन बन जाने के बाद इस रिएक्शन रुक जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। Now peroxide effect is observed only in the addition of HBr. Addition of HCl and HI always occurs in accordance with Markovnikov's rule. In presence of inhibitors such as diphenylamine, catechol, etc., peroxide effect is not observed. Now, anti-Markovnikov's rule: when an electron attracting group is present in the vicinity of unsymmetric double bond, the product is formed against anti-Markovnikov rule. This is known as anti-Markovnikov's rule. And when an electron attracting group is present in the vicinity of unsymmetric double bond, the product is formed against Markovnikov's rule. This is known as anti-Markovnikov's rule. For example, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2OH है, एलाइल एल्कोहल, HX रिएक्शन होता है, तो यहाँ ये C डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज। OH है, ये अनस्टेबल स्पीशीज बन रही है। फाइनली अब इससे X जो कि निगेटिव चार्ज है X पार्ट पे, वो आकर के इस CH2+ से जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ इससे अटैच हो जाएगा, तो ये CH2 हो गया। OH यहाँ पे मौजूद है, तो ये रिएक्शन क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हो रहा है। क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो रहा है, जिसके पास की हाइड्रोजन कम है, जबकि हाइड्रोजन वहां अटैच होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। इसी तरह से एसेटल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH CHO HX, तो ये पहले ये इंटरमीडिएट बनता है, CH2+ हो जाता है, और ये CH- CHO, यहाँ जो डीलोकलाइजेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, उससे
अब X कहाँ जुड़ रहा है, जिसके पास की ज्यादा हाइड्रोजन है, और H कहाँ जुड़ रहा है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो दीज आर द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रिएक्शन। इसी तरह ये एक्रिलिक एसिड का रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड, यानी किसी इस तरह के ग्रुप के साथ जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब इस तरह का एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होता है HX से। उसी तरह से ये इंटरमीडिएट पहले बना और X इससे अटैच हुआ और H इससे, दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। Now addition of HX on allyl chloride takes place in accordance with Markovnikov's rule. Do Cl is an electron attracting एटम्स। इस तरह से Cl जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव रिएजेंट है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इस तरह होता है HX, तो ये CH2 माइनस हो जाएगा और ये CH प्लस, जब इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के इधर आएगा, ये CH2 माइनस CH प्लस और CH2 के साथ यहाँ Cl लगाई हुआ है पहले से। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, तो CH प्लस के साथ X जुड़ेगा, यानी अब ये मार्कोनिकॉफ के रूल से हो रहा है, और Cl के साथ CH2 के साथ Cl जुड़ेगा। Now with increase in distance between double bond and electron withdrawing group, this effect goes on decreasing and addition occurs according to Markovnikov's rule. जब डिस्टेंस between double bond and electron withdrawing group is, जब ज्यादा डिस्टेंस होगी दोनों में, तब जब एडिशन ऑफ HX होगा वो मार्कोनिकॉफ के रूल से होगा। तो 2 पॉइंट है इसमें। पहला क्या है, एडिशन ऑफ HX ऑन एलाइल क्लोराइड टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंड सेकंड, with increase in distance between double bond and electron withdrawing group, its effect goes on decreasing and addition occurs according to Markovnikov's rule. If the formation of product in case, if the formation of product in case, if the formation of product in case of unsymmetrical alkene cannot be explained on the basis of above mentioned rules, stability of carbocation is considered for explanation. For example, addition of HX on CH3, CH3 double bond CH2, CH3 फिर CH2, CH3. 2 carbocations are expected by the addition of H plus on alkenes. 2 तरह के, एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन CH प्लस का इस तरह का ये कार्बोकेटाइन बन रहा है H प्लस के एडिशन पे, और दूसरा इस तरह से बन सकता है यहाँ थर्ड पे। तो ये क्या है, 2 डिग्री, दिस इज दी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस इज दी 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ नहीं, इससे मतलब है फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दिस इज लेस प्लस चार्ज है, और दिस इज दी लेस स्टेबल, एंड व्हेन C प्लस इस कार्बन पे है तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो both the carbocations are tertiary in nature, यही पे कंफ्यूज हो रहा है। दोनों ही कार्बोकेटाइन में कार्बन क्या है, दोनों पोजीशन पे, चाहे इस पे प्लस चार्ज आया या इस पे, both carbocations are tertiary in nature, but carbocation second is more stable than first, hence following product is formed। इस तरह से। Now nucleophilic addition reactions. Nucleophilic addition reactions are those reactions in which nucleophile adds to an unsaturated bond in the first slow rate determining step, and then an electrophile add to the carbanion formed to give the product. Carbonyl group C double bond O give nucleophilic addition reactions. Some example are as follows: addition of HCN on C double bond O group, addition of NaHSO3 on C double bond O group.
Nucleophilic addition reactions involve following steps. First, formation of nucleophile. तो अटैकिंग रिएजेंट्स ब्रेक होता है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल. सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑक्सी एनायन बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. सी डबल बॉन्ड ओ जिसमें होता में जब ये तो इनमें इसमें ब्रेक होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो दिस इज सी प्लस एंड दिस इज सी माइनस. नाउ न्यूक्लियोफाइल is attached with this to form intermediate कार्बेनाइन. जब कार्बन मॉलिक्यूल्स में माइनस चार्ज होगा तब वो कार्बेनाइन कहलाएगा. इन स्टेप B, two intermediate carbanions may be formed. First, when electrophile adds first. इस तरह से तो इस तरह का कार्बोकैटायन बनेगा ये. When nucleophile not कार्बेनाइन नॉट बनेगा ये, बल्कि कार्बेनाइन बनेगा, नॉट कार्बोकैटायन. इन स्टेप B, टू इंटरमीडिएट कार्बेनाइन में बी फॉर्म्ड. हियर इज माइनस और न्यू, जब ये C यहाँ पे होगा माइनस और इस पे प्लस. व्हेन इलेक्ट्रोफाइल E प्लस एट फर्स्ट, व्हेन न्यूक्लियोफाइल एड्स फर्स्ट, दूसरी पोजीशन ये होगी. यानी इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट ऐड होगा तो इस तरह का कार्बेनाइन बनेगा, और व्हेन इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल ऐड फर्स्ट देन कार्बेनाइन ऑफ दिस टाइप इज फॉर्म्ड. द कार्बेनाइन सेकंड इज मोर स्टेबल. ये देखने से ही लग रहा है ये कम स्टेबल होगा. दिस इज द मोर स्टेबल देन फर्स्ट बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे जैसे कार्बन पे होता था नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. और न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिव होता है ये प्लस कार्बन से जुड़ जाता है. दिस इज तो intermediate carbanion. Now in step B, two intermediate carbanions may be formed. First, when electrophile E at first, and when nucleophile at first, then these types of carbanion form. Now third step is formation of product. अब ये जो कार्बेनाइन, जो स्टेबल कार्बेनाइन बना, वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करके, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट होता है और ऐड हो जाता है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, और फाइनली प्रोडक्ट बनता है. फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन साइनोहाइड्रिन बाय एडिशन ऑफ HCN ऑन एसीटोन. C डबल बॉन्ड O CH3 HCN, तो CN और इस O के साथ H ऐड होके एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनाता है. मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल CN. तो हाइड्रोलिटिक फिजन ऑफ HCN गिव्स इलेक्ट्रोफाइल H प्लस एंड न्यूक्लियोफाइल NU, यानी दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल. HCN के ब्रेकअप से फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट ऑक्सी carbanion C acetone reacts with CN and forms this type of carbanion, and finally form product. Formation of product, H plus react with this carbanion and form acetone cyanohydride. तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म थी. तो इसमें दो रिएक्शन, two types of reaction is discussed here: free radical reactions and addition reaction. और अगले हम क्लास में रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन, इन दोनों की मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे.